In the last class, we dealt with a brief introduction of what is payroll management, right? We learned what is payroll, we learned what is management, okay? And combined both of them, we learned in respect of payroll management that what is payroll management. Let's do a quick revision for some students who were absent in the last class. Payroll is a list of employees in the organization who get salary from the organization, okay? And management is various processes involved in paying salary to the organization, the employees of the organization, okay? Though payroll management sound a simple and uncomplicated word, but in reality it is not. I gave you a structure. I told you about deductions. Yes, you just all of them who were absent in the last class, you can get the notes from your peers, okay? I told you about deductions. Since the deductions, they involve a lot of tax calculations, a lot of statutory compliances. What is statutory compliances? What is statutory? Anyone? Idea? Yes, you're close. Others? You're close. Others? Any idea? No? Online students? What is statutory? Statutory compliances are the mandatory compliances which the organization has to follow when they are processing and preparing salary of any person. For example, we studied in the last class that gross salary is basic plus allowance, right? Net salary is equal to gross salary minus Deduction plus IT. Deduction plus IT declaration. Yes. IT declarations. What are these deductions? These deductions are actually, some of the deductions involve statutory deductions, which the organization, the employer has to follow mandatorily. If they don't, a heavy fine or penalty can be imposed on that employer. Okay? And there are some non-statutory deductions, which is not mentioned in law. But since you might have availed the facility of same, so those non-statutory deductions are there in the organization. Okay? जैसे आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है, जैसे व्हीकल लोन लिया है, ये आपके सैलरी के हर मंथ में डिडक्ट होगा कि नहीं? आपने अपने सैलरी स्लिप से लिया है, ये व्हीकल लोन तब तक डिडक्ट होता रहेगा जब तक आप उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे ना कर दें, राइट? So this is non-statutory deduction, जो लॉ में मेंशन नहीं है, बट आपने किसी तरीके का हाउस लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको लोन कुछ कम रेट में ही ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, इसीलिए they take it from the organization itself, fine, because they are linked with a lot of cooperatives and all. Yeah, but there are also some statutory deductions. Statutory deductions means which are must to be deducted, fine, like example PF. Heard of it? What is PF? Provident fund. This is must for an organization. This is a contributory scheme. In this contributory scheme, the employer is supposed to make a contribution of 12% and the employee is also supposed to make an equal contribution from his salary. Right? I'll teach you various acts. Sometimes जब क्या होता है कि जब डिडक्शंस होता है, किसी में ये बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट होता है, इसका 12%, इसी में सिर्फ बेसिक जोड़ा जाता है. ग्रेच्युटी पेमेंट जब होता है तो उसमें सिर्फ बेसिक का कैलकुलेशन करता है, ठीक है? ग्रेच्युटी में इसको कैलकुलेट करते हैं और पीएफ में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? So these are the statutory and non-statutory compliances or deductions that are done in an organization. समझ में आया? इसके अलावा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब सैलरी प्रोसेसिंग का काम होता है, जब वो सैलरी प्रोसेस करती है,
बहुत सारा टैक्सेशन कंप्लायंस है. Yes, the taxes are fixed by central government. Organizations have no say in that. There are various employees in an organization who fall under different tax brackets. Their pay will be deducted differently from those people who are in different tax brackets, right? So this way, salary calculation is not an easy task in the organization. Fine, because you have to go through a lot of technicalities. स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में और भी डिडक्शंस आता है, जैसे ईएसआई डिडक्शन. जो लोग ये मोस्टली नीचे ये दिस इज मोस्टली काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है. ये ईएसआई इज फॉर एम्प्लॉइज whose salary is up to, I'll teach you this entire law, you have to understand, because social security आपको पढ़ना है. इसमें जिनकी सैलरी 21,000 तक है, उनकी सैलरी का 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करती है, 0.75% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है. जिनका सैलरी 137 रुपीज पर डे है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग, ऑल ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर. तो इस तरीके के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी बनाने के समय में ध्यान रखना होता है. इफ दे डू नॉट ओबे, if they do not comply with the statutory standards, they may be imposed with heavy fines and penalty. ठीक है. Now ये हो गया. अब आज की क्लास में we will study what are the requisites of payroll calculation. Although I told you that I will be starting salary structure, but you just write down because salary structure comes under that component. Write down initial consideration for payroll calculation. First point, write down pay period. Draw it like this. You'll keep it remembered for longer time. Second, salary structure. Third is employee type. ऊपर वाला नहीं दिख रहा है मैम. Okay, I'll dictate it. Don't worry. As much as you can see, you write down. थैंक यू मैम. I'll dictate it. Don't worry. Salary structure. सेकंड नंबर क्या है मैम? Salary structure. Salary is a part of initial consideration, so I thought that it would be appropriate to get a list of exactly what is required for payroll calculation, because salary is only a part of it. Salary I'll be doing in the next class. Time remains and start this class. Employees bank information. Write down the name of just employee and
Let's discuss these points in details. Okay. Online students. मैम थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर नहीं दिख रहा. Right, एम्प्लॉय टाइप. employees bank information. Employee bank information. You don't worry. I'll discuss it one by one. You'll be able to write it down. Okay. What is the first point? Pay period. Pay period. Say for example, pay period means ये क्या लिखे आप लोग अभी ये लिखे इनिशियल कंसिडरेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन. मतलब जब पेरोल का कैलकुलेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इतनी बेसिक चीजें, दीज आर ऑल दी बेसिक थिंग्स. हर पॉइंट के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक है. स्पेशली जब आप ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे अभी जो पीएफ बताया, ये पीएफ किससे गाइड होती है? द Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. Gratuity payment, the payments of gratuity act 1970, sorry, ये वाला 1952. The payments of gratuity act 1972. Salary का compliance, the minimum wages act 1948. तो इन चीजों का किसी organization को when they are preparing the salary, when they are preparing the payroll, when they are doing the payroll processing, they need to keep all these things in mind. Only when their salary complies these statutory requirements of the government, they are valid salaries. Okay, so let's discuss these points one by one. First, what is the first point? Pay period. Pay period. What is the meaning of pay period? Say for example, organization, see, different organizations, they keep different dates for paying the salaries. Some they give their salaries on 1st, some they give it on 30th, some they give it on 7th or 8th of the month. Okay, some they give it on 15th. Okay, so this is a period fixed by them. It is advisable that if you say for example 1st of every month in any organization XYZ pays their salary to their employees, fine, it is advisable that before that month, say कि ये सितंबर की सैलरी है, ठीक है, 1st of September, यानी अगस्त की सैलरी सितंबर में मिल रही है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि अगस्त का महीना 24th 25th तक that salary period comes to an end. The calculation should stop, so that what happens that the organization or the payroll management process has enough time to carry on different calculations. तो कॉरेस्पॉन्डिंग महीने में 4-5 दिन पहले अगर पे पीरियड को उतना ही रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो कैलकुलेशन आसान होगी कि नहीं? से अगर 31st तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बिकम अ लिटिल cumbersome task. Okay, this is pay period. This should be fixed by the organization that in the corresponding month we'll stop the pay period to 4 to 5 days prior to the ending of that month. Next, salary structure. Salary structure means, see, an organization has many employees. I told you already. They have many employees. The employees, they belong to different categories. अलग-अलग लेवल के एम्प्लॉय होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. वो अलग-अलग हायरार्की, अलग-अलग पे लेवल को बिलोंग करते हैं ना. उनके हिसाब से उनका अलाउंस अलग होगा, उसके हिसाब से उनका बेनिफिट अलग होगा, उसके हिसाब से उनका टैक्सेशन पॉलिसी अलग, टैक्सेशन अलग होगा. ठीक है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर अवेलेबल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो इंसेंटिव बेस्ड बोनस देती है या फिर ऐसे ही बोनस देती है, इट्स अ लंप सम अमाउंट ऑफ बोनस. ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है ये वहां का पेरोल मैनेजमेंट करने के पहले उसके पास अवेलेबिलिटी होना इज इम्पोर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉय टाइप. This is the same thing. An organization consists of several employees, many employees. These employees, there are employees at every hierarchical level who belong to
who are in the payroll of the organization, they are also getting paid, their salaries are also getting paid. So आप किसका पेरोल बना रहे हैं, उस एम्प्लॉय के टाइप यानी कि वो किस पे लेवल या किस मैट्रिक्स को बिलोंग करता है, उसके इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होना इज मैंडेटरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेरोल. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वी हैव डिस्कस्ड इट इनफ. आपको थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ना है. प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ईएसआई, मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर लॉज, थोड़ा और लेबर लॉज. ठीक है, कौन सा एक्ट किस में आता है, सोशल सिक्योरिटी, ये डिटेल में हम पढ़ाएंगे बाद में. और नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए गए हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ लॉज हैं, जिनको देने के वक्त सैलरी देने के वक्त उन लॉ से कंप्लाई करना किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. एक एक्ट बस बताते हैं, अभी बाद में सब डिटेल में पढ़ना ही है. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इस एक्ट में ये लिखा हुआ, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पास की है. ठीक है, एंड दिस एक्ट सेज कि irrespective of how your organization is doing, whether it is making profits or not, whether it's a big organization or small, regardless of that, you have to pay a minimum salary, a minimum wage to the organization, sorry, to the employees of that organization. आप जो न्यूनतम मजदूरी सुना है कभी, न्यूनतम मजदूरी है जो मिनिमम वेज है, उससे कम आप पेमेंट नहीं कर सकते. अगर आप कर रहे हैं तो आप कानूनन गलत कर रहे हैं. ठीक है, स्टेट्स का अलग अलग है. तो इस तरीके का बहुत सारा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस है, जैसे प्रोविडेंट फंड भी है, जैसे उसमें कैलकुलेशन होता है. ईएसआई में जो लोग हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसका पैसा डिडक्ट होता है. तो ये सब डिडक्ट करना जरूरी है. ये सब गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्कीम की तरह, सोशल सिक्योरिटी की तरह देती है. यहाँ आपका पैसा जमा होता है, जो आप किसी भी हार्डशिप का मोमेंट अगर आपके लाइफ में है तो आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. और इस पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है. ठीक है, आपके सैलरी का एक पार्ट का जितना सैलरी से आपका डिडक्ट हो रहा है उतना या उससे ज्यादा. जैसे ईएसआई काफी नीचे के वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए शुरू किया गया था, पढ़ाएंगे वो, तो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है. लेकिन पीएफ की बात करें तो बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है. और पीएफ में एम्प्लॉयर को थोड़ा सा उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होता है, जो गवर्नमेंट के पास हो जाती है पैसा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी कैलकुलेशन मोड्स. We talk about सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी, जैसे यूपीएससी से जो लोग रिक्रूट होके आते हैं, बीपीएससी से रिक्रूट होते हैं, एसएससी से. ठीक है, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है. हाँ, इसका जो सैलरी का कैलकुलेशन का सिस्टम है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सैलरी कैलकुलेशन मोड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट. ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होती है, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है. देखना कहीं लिखा हुआ होगा अंडरटेकिंग, उपक्रम, अंडरटेकिंग. बैंक्स अंडरटेकिंग है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ओएनजीसी अंडरटेकिंग है. लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है. यूपीएससी से जितना रिक्रूटमेंट होता है वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है. बीपीएससी से जितना रिक्रूटमेंट होता है वो प्योर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है. ठीक है, तो वहां पे ग्रेड पे चलता है. यहाँ पे मैट्रिक्स होता है, लेवल 1, E1, E2, E3, इसमें इतना का बेसिक इस तरीके से बढ़ता है. ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पैसा देती है, दैट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सैलरी का मोड, किस मोड में सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसका इंफॉर्मेशन पेरोल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए. ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन किसी पेरोल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए.
टेक स्मॉल एग्जांपल, मैंने आपको बताया था उस दिन कि प्रोबेशन पीरियड में यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर लीव्स. Once you get confirmed, you start getting paid leaves. Before that, you have unpaid leaves. If you go off your work for 5 days, your 5 days wage will be, 5 days salary will be cut. Okay? Your 5 days salary will be cut. Okay? So, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोड है कि लीव विदाउट पे का कैलकुलेशन 1 साल तक होगा या 2 साल तक होगा, will it not be fed in payroll software? Yes, no. It will be fed. So knowing the modes of salary calculation is a mandatory thing, is very imperative for payroll calculation of any organization. Okay, next. Employees bank information. This is probably the last point, right? Yes. Okay. किसी भी एम्प्लॉय का जब पेरोल का कैलकुलेशन होता है तो सिर्फ बैंक का ही डिटेल्स नहीं, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल नंबर्स जनरेट होता है. जैसे आप पीएफ भर रहे हैं, आपका पैसा कटा, आपके नाम से पीएफ कहाँ सबमिट होता है? इट्स अ पीएफ बॉडी, हाँ, प्रोविडेंट फंड की बॉडी है. ईपीएफओ इज द पेरेंट बॉडी, वहां आपका पैसा जाता है. यू गेट अ नंबर जनरेटेड, ठीक है, पीएफ का नंबर मिलता है आपको. ईएसआई का पैसा कटा, ईएसआई का नंबर दिया जाता है एम्प्लॉइज को, और बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपका रहता है एम्प्लॉयर के पास, जिसमें कि सैलरी भेजी जाती है. आर दीज डिटेल्स नॉट कॉन्फिडेंशियल? यस, दीज डिटेल्स आर कॉन्फिडेंशियल. पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूजर जनरली एक रिस्ट्रिक्टेड लोगों को ही दिया जाता है, और एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉइज के पास उनकी आईडी होती है, जिसमें कि वो आईडी लॉगिन करके सिर्फ अपने अकाउंट में उनका सैलरी का क्या स्टेटस है, उनके लोन का क्या स्टेटस है, उन्होंने कितना टैक्स भरा, उनका पीएफ कितना कटा, वो देख सकते हैं. यू कैन लॉग इन एंड यू कैन सी जस्ट योर्स. जो पेरोल सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रही है उनके पास तो सबका डेटाबेस है. सो बैंक के अकाउंट का डिटेल्स या फिर कोई जनरेटेड नंबर जिसमें आपका पेमेंट जा रहा है, that is a confidential thing for the organization and for the employees also. So the payroll software makes sure that it does not get into hands of any unauthenticated users either inside or outside the organization. ठीक है? Okay. We'll discuss one more point. I think you should get clear concept of this also because आप सैलरी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए. Next class I'll start salary structure, various components of salary. What is the difference between wage and salary? paid on daily basis. तो डेली बेसिस पे पे होता है. Wages labor को मिलता है, salary employees को मिलता है. इसमें trained और skilled workers नहीं होते. What is the difference between wage and salary? Start giving me points. Wages are for daily wage. Okay. Salary are monthly. But wages are not always for daily basis. Sometimes you get fortnightly also. Mostly. Okay. Yes. Anyone from this side? Difference between wage and salary. We use this word interchangeably, right? We use this word interchangeably. But there is one nuance, very nuanced difference between wage and salary. You should know this. Wages unskilled और untrained labor को मिलता है, और salary skilled और trained को मिलता है. Wages trading account में होता है, salary PL account से कटते हैं. आप ये बताइए कि आप कैसे पहचानते हैं कि कोई काम स्किल्ड है या ट्रेंड है, या ट्रेंड है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है? ये बताइए, हाउ डू यू judge a work into category of it being skilled, unskilled, semi skilled? बिहार गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज में लेबर को डिवाइड किया है.
ठीक है, there are 5 categories into which Bihar government has divided the workers: unskilled, semi skilled, and skilled, highly skilled, and supervisor. Someone was saying yes, supervisor. कैसे डालते हैं हम कैटेगरी में? How do you think? Just imagine and tell me. आप जो कह रहे हैं that is right. wages किसको मिलता है, क्या मिलता है, पेमेंट होता है, मोस्टली उनको दिया जाता है, that's right. But the technical difference is missing. How do you tell that certain work is unskilled and certain is skilled? देखो, जिस काम को हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिस काम को वी कैन नॉट क्वांटिफाई, जिसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते, क्वांटिटी में, जैसे जैसे किसी स्टूडेंट को डांट पड़ी, आप ये एक स्केल बता सकते हैं कि कितनी डांट पड़ी, 1 डांट पड़ी, 2 डांट पड़ी? कैन यू से दिस? कैन यू क्वांटिफाई दिस? कोई मैनेजर अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टिंग. 5 functions of management you have read. What are the 5 functions of management? Control. ठीक है, ये 5 functions है. इन functions को करने के लिए, ये चलिए एक ही एग्जांपल उठा लीजिए उसमें से, प्लानिंग. कोई ये बता सकता है कि मैंने 2 प्लान किया, मैंने 3, कोई इंडेक्स है या कोई मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स? कैन यू क्वांटिफाई द वर्क ऑफ अ मैनेजर? आज मैंने इतने टीम को मैनेज किया, तो मैनेज किया तो वो काम था, बट कितना मैनेज किया इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. बट जब हम लेबर की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आज उसने 5 कार्टन को पैकिंग की. यू गेटिंग माय पॉइंट? हम बोलेंगे कि वो 10 कार्टन का पैकिंग करता है, उसने 70 स्ट्रिप्स दवा के पैक किए एक दिन में. जिस काम को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको जनरली हम वेज के कैटेगरी में डालते हैं, और जिस काम को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं दे आर जनरली गिवन द सैलरी. और ये आपने जो बोला वो सब सही है, ये जनरली लेबर्स को मिलता है क्योंकि वो अनस्किल्ड होते हैं, तो उनका काम हम जैसे उनके काम को, आज कोई ईटा उठा रहा है तो हम बता सकते हैं ना कितना उठाया, या इतना बोरा उसने बालू उठाया, या कंपनी में काम कर रहा है तो उसका जो वेज होगा वो इतना वेज होगा, इतनी बार गाड़ी से उसने शिफ्ट होया, राइट? अब समझ में आया डिफरेंस? द वर्क व्हिच वी कैन क्वांटिफाई वी रेट इट अंडर quantify, yes, we rate it under wages, and the work that we cannot quantify we rate it under salaries. Mostly managers in clerical grade, from clerical grade and above, they are paid salary because we cannot really quantify the amount of work that they do, and below that we generally give wages. That is why minimum wages का concept है कि आप उससे नीचे wage नहीं दें क्योंकि उनका exploitation होता है. ठीक है? Okay. मैम, हाँ. मान लीजिए ये क्लास है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 50 बच्चा है, 5 बच्चा का ग्रुप है, अलग अलग डिपार्टमेंट में. आप पूरे 50 को कितना हो गया, 10 ग्रुप है. आप 10 ग्रुप के आप एक मेन मैनेजर, मेन या मैनेजर जो करते हैं उसको मान लीजिए. आपको उसमें से 5 में से कोई एक मेन रहेगा, वो 10 जो मेन होगा वो आपको क्या कहते हैं, इन्फॉर्म करेगा जो बात वो आप तो इसको क्या तरह से कंट्रोल करने वाले. कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, आपको तो पता है नहीं कि आपको कंट्रोल को तुम काउंट कैसे कर सकते हो? कंट्रोल को तुम काउंट कैसे कर सकते हो ये बताओ. आप बोलिए आपने आदमी 5 कार्टून को पैक किया, 5 तुम मैट्रिक्स बता सकते हो ना, लेकिन हम अगर 5 लोगों को काउंट कंट्रोल करें, क्या तुम ये बोल सकते हो कि हम कितना कंट्रोल किए? थोड़ा कंट्रोल किए, कंट्रोल का क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो तुम. समझ में आई बात? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना? प्लानिंग, स्टाफिंग,
हम उसको बिहेवियरली तुम समझ सकते हो, बट यू कैन नॉट क्वांटिफाई दैट. प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल. या जब डायरेक्टिंग की बात होती है, जब डायरेक्टिंग प्लानिंग में पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारा पॉइंट्स है कि कैसे डायरेक्शन का क्या क्या होना चाहिए. पहला पॉइंट, अगर पहले बात से एम्प्लॉइज नहीं मान रहे तो यू शिफ्ट टू सेकंड, यू शिफ्ट टू थर्ड, और लास्ट में आता है स्कोल्डिंग, मतलब डांटना. ठीक है, कितना डांटे इसको कोई मेजर कर सकता है? नहीं. कितना इनफ है? यू कैन नॉट मेजर दैट. इसीलिए उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं हम. मैनेजर्स को सैलरी देने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हैवी पैसा जाता है, बहुत हैवी, दूसरों को सैलरी देने के अलावा भी. इसीलिए जो मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है. और जितना पर्क्स एंड बेनिफिट्स उनको दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि क्योंकि हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, आप ट्रेन हुए, आप काम किए. बेनिफिट्स हम मोस्टली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सैलरी स्ट्रक्चर में बताएंगे कि अलाउंस, बेनिफिट, इंसेंटिव सब में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, पर्क्स क्या होता है, ये सब. ठीक है, now you tell me salary structure. Should I start salary structure? There's still 10 minutes left. Okay, then in next class I'll start with salary structure. Okay, okay. Okay, ma'am.